Hi guys, how are you? Hi Sarang, hi Shweta, hi Son, hi Yogita. Good morning. Very good morning to all of you. मैं बहुत बढ़िया. Thank you so much for asking. How are you? Welcome to Kolkata, guys. My name is Tushar, and I'll be the host of this session. Okay, so let's talk about the session first. Okay, so right now we are going to do Katrina Kaif's wedding-inspired makeup look. In a world of bride who opt for heavily done by eyes and heap of highlighters for their big day, Katrina Kaif's minimal makeup was a refreshing change, making a case for an all matte look. Yeah. Uh, Making a case of an all matte look. Katrina's makeup artist Danielle, that oil fragmented pigments settle the makeup flawlessly, leaves no issues that we can ever find. So yes, as I have told you, today we are going to look at Katrina Kaif inspired makeup look, and for this session we are going to have with us Melissa Young. And just a second, guys. Just a second, guys. I'm just waiting for some more people to join. Okay. About Melissa, she did makeup for WCI Wells Lifestyle Indian Fashion Week. She did makeup for BNW SSC Skill Demo Makeup and Hairstyling at National Entrepreneurship Award 2017. She did makeup for Mrs. India 2018. She has worked for Sumu as a makeup artist and an amazing makeup educator that we have on our platform. So this, as you know, Katrina Kaif's look was was something जिसको लोगों ने बहुत ही ज़्यादा appreciate किया. And आज के session में we are going to take a look how exactly you can create that particular look. So without wasting our time, let's invite our artist for today's session. Hi Melissa, can you hear me? Hi Tushar, how are you? I'm good, Melissa. How are you? I'm very well, thank you. Good morning, guys. Hi to everyone. Hi Ankita. Hi Dhanashri. Hi Farida. Hi Gurpreet. Hi Sarang. Hi Shirley. Hi Shweta. Hi Sonal. Hi Sonu. Hi Vandana. Hi Yogita. Hi Deepika. I hope you guys are doing great. So, okay, great. Okay, so I am dressed up like this because we'll be doing a inspiration wedding makeup look of Katrina Kaif. And I hope जो भी practice करेंगे आज मेरे साथ वो लोग भी somewhere close to this look आप dress up हो सकते हो, because it will be a very fun class. You must have seen कि 2021 में Katrina Kaif का बहुत ज़्यादा एक ट्रेंडिंग लुक चला था ऑफ वेरी मिनिमल मेकअप.
So वही हम create करेंगे. But before we talk about, more talk about the class, let's see if we have anyone new in the class. जिनके आज first class हो हमारे साथ. Do we have anyone, Tushar? Yeah, we have some people here. Anusha is one. अनुषा की आज हमारे साथ फर्स्ट क्लास है. आई थिंक अंकिता की भी हमारे साथ फर्स्ट क्लास है. सुनील की हमारे साथ फर्स्ट क्लास है. Oh, wow, lovely. Okay, guys, so welcome to Calcutta, and I hope you learn a lot from today's class. And I hope कि आप लोग सब कुछ follow करें, and I hope you guys practice with me. So Tushar, shall I just move forward? Yes, we can. Okay. All right. Okay, guys, so जैसे कि मैंने बताया कि हम इंस्पिरेशन लुक करने वाले हैं. ओके, सो उसके लिए मैंने आपके लिए एक प्रेजेंटेशन भी तैयार करी है, सो दैट यू कैन हैव अ लुक एंड अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली हम क्या करने वाले हैं और क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए टू अचीव दिस टाइप ऑफ मिनिमल मेकअप लुक. सो लेट मी शो यू द प्रेजेंटेशन. आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन. It is visible. Okay, perfect. Okay, so ये मैंने यहाँ पे you can see the topic name and you can see this beautiful picture of Katrina Kaif जिसमें वो अपने wedding में इतनी beautifully dress up हुई हैं. You can see the outfit is just like our typical wedding जो हमारी होती है in red लहंगा, वही उसी की embroidery हो रखी है in golden. Then you can see this heavy diamond jewelry जो उन्होंने neck पे पहना है. And everything is so heavy. You can see the outfit, उसमें जो embroidery का work भी हो रखा है, that is totally covered on that red color का outfit. ठीक है, साथ में the jewelries are so heavy. Okay, and everything is so heavy. इसी वजह से the makeup has been done very soft and minimal. बहुत कम प्रोडक्ट से मेकअप क्रिएट करा गया है ताकि वो आउटफिट और ज्वेलरी से मैचअप कर पाए. साथ में ये एक डे मेकअप है क्योंकि एक डे वेडिंग थी है. ठीक है, इट वाज नॉट अ इवनिंग वेडिंग. सो इसी वजह से डे कलर्स ही हमें यूज करने होंगे इसमें, जैसे कि हमारे कलर्स ऑफ ब्राउन, पिंक, गोल्ड, इसी तरीके के कलर्स हम सिर्फ यूज करेंगे टू क्रिएट दिस लुक. साथ में इफ वी मूव फॉरवर्ड, ठीक है, तो हमें फेस अनाटॉमी का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है व्हेन वी डू दिस टाइप ऑफ लुक. इट मींस कि आपको अपने फेस को चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको रीड करना जरूरी है. अब मान लिया कि कैटरीना कैफ का इंस्पिरेशन लुक है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपने फेशियल शेप को उनके फेशियल शेप से कंपेयर करोगे. ऑफ कोर्स शी इज अ डिफरेंट पर्सन. उनका फेस शेप अलग होगा, उनका कॉम्प्लेक्शन अलग होगा, उनका आई शेप अलग होगा, लिप शेप अलग होगा, राइट. सो उसी का ध्यान रखते हुए फर्स्टली यू हैव टू टेक केयर कि आप स्किन टाइप एंड स्किन कंसर्न को समझो अपनी, या फिर आप जिस पे वर्क कर रहे हो उनपे. देन फेस शेप को अंडरस्टैंड करना जरूरी है, आईब्राउ की डेंसिटी एंड शेप को अंडरस्टैंड करना, आई शेप को अंडरस्टैंड करना, सो दैट आप उसके अकॉर्डिंग ही थोड़ा सा अपना टेक्निक फॉलो करो विद द सेम कलर्स. आईलैश की डेंसिटी, साथ में नोज शेप एंड लिप शेप, ये सारी बेसिक चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना जरूरी है, अंडरस्टैंड करना जरूरी है उसकी शेप को, सो दैट आप उसके अकॉर्डिंग वर्क कर सको. साथ में इफ यू मूव फॉरवर्ड यू विल सी कि थिंग्स टू कीप इन माइंड बिफोर वर्किंग ऑन योर क्लाइंट. क्या क्या चीजों का आपको ख्याल रखना जरूरी है बिफोर यू वर्क ऑन योर क्लाइंट. सबसे पहले स्किन टोन. ठीक है, सबसे पहले अब हम कैटरीना कैफ का स्किन टोन को यहाँ नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे अपने स्किन टोन जिस पे हम वर्क करेंगे. इफ आई एम टेकिंग माई स्किन टोन, मैंने यहाँ लिखा है वीटिश मीडियम स्किन टोन. ठीक है, स्किन टाइप मेरी ऑयली, आपकी जो है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने प्रोडक्ट्स चूज करने हैं. क्लाइंट का आउटफिट का कलर को ध्यान रखना है. ठीक है, और कलर स्कीम आप क्या फॉलो करोगे, जो कैटरीना कैफ के आप मेकअप ध्यान से देखोगे, एवरी कलर इज वेरी मिनिमल एंड सॉफ्ट. तो वो मोनोक्रोमैटिक कलर के कलर्स यूज करें, मतलब एक ही फैमिली के लाइट से डार्क टू लाइट कलर्स यूज करे गए हैं मोनोक्रोमैटिक कलर स्कीम फॉलो करके. फॉर्मुलेशन अब लिक्विड फॉर्मूला यूज करेंगे. फिनिश हम मैट यूज करेंगे क्योंकि इट्स अ डे मेकअप. ठीक है, डे मेकअप में आउटडोर फंक्शन है, धूप होगी, स्वेट आएगा. ठीक है, चाहे विंटर्स भी हो, देयर आर चांसेस कि हम जब इतना ज्यादा हैवी आउटफिट पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, एंड ऑल्सो इंटरनली वी आर सो एक्साइटेड अबाउट द वेडिंग. ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हीटअप क्रिएट होता है. ठीक है, इंटरनली हमारा हॉर्मोनली ही हमारा हीट स्टार्ट हो जाती है इन आवर बॉडी कंपेरेटिव टू अदर पीपल. द ब्राइड विल बी मोर कॉन्शियस
about her look and also about the day. इतना big day होता है एक bride के लिए, so उसके अकॉर्डिंग इसी वजह से हम मैट फिनिश फाउंडेशन यूज करेंगे. कवरेज हम मीडियम रखेंगे क्योंकि अगेन इट्स अ डे मेकअप. ठीक है, डे मेकअप के हिसाब का हमने लुक रखना है फेस का. और मीडियम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा हमें कवरेज देना भी जरूरी है, क्योंकि इन दी एंड शी इज अ ब्राइड. नाउ वेन्यू आउटडोर है, डे लुक है, सीजन विंटर है, तो ये सारी चीजों का ख्याल रख के हम अपना प्रोडक्ट्स का फॉर्मुलेशन चूज करेंगे. नाउ मोनोक्रोमैटिक कलर एग्जैक्टली क्या होता है अगर किसी को नहीं पता, तो यू कैन हैव अ लुक एट दिस पिक्चर जिसमें कलर व्हील बना रखी है. कलर व्हील में यू विल सी एक एग्जांपल ले रखा है येलो का. ठीक है, अब येलो का मतलब एक ही फैमिली का कलर्स, मतलब येलो, उससे लाइटर येलो, उससे भी लाइटर 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 होके जो कलर्स आते हैं, वही सेम आप पिंक में भी चूज कर सकते हो, वही सेम आप थोड़े ब्राउनिश टोन में भी चूज कर सकते हो, या फिर कुछ गोल्डनिश टोन का भी आप कुछ चूज कर सकते हो जिसका डार्कर टू लाइटर वर्जन जाए एक ही फैमिली के कलर. नाउ द बेस्ट स्किन केयर रूटीन ऑर्डर टू फॉलो, मतलब अगर आप अपने मेकअप से पहले या फिर अपनी जनरली लाइफ पे भी मॉर्निंग एंड नाइट में स्किन केयर रिजीम फॉलो कर रहे हो, तो उसका क्या बेस्ट स्किन केयर ऑर्डर है टू फॉलो, विच इज क्लेंजर. ठीक है, सबसे पहले क्लेंजर करना जरूरी है, फेस वॉश करना जरूरी है. देन यू हैव टू अप्लाई योर टोनर, देन अंडर आई क्रीम, देन यू कैन अप्लाई एनी सीरम और ट्रीटमेंट. अगर आप अपने फेस पे किसी भी तरीके का सीरम या ट्रीटमेंट यूज कर रहे हो टू कंट्रोल योर स्किन केयर कंसर्न, मतलब अगर आपकी स्किन में कोई भी कंसर्न है, अनइवन स्किन टोन है, ब्लेमिशेस है, एक्ने मार्क्स हैं या एक्ने एक्टिव एक्ने है, उस पर अगर आपको कोई ट्रीटमेंट करनी है, यू कैन डू दैट. देन यू हैव टू मॉइस्चराइज योर स्किन एंड देन सनस्क्रीन यूज कर सकते हो आप डे टाइम पर. तो ये आपको स्टेप्स फॉलो करनी है. सेम आप बिफोर मेकअप भी ये सारे स्टेप्स फॉलो कर सकते हो, सो दैट यू कैन गेट अ नाइस फ्लॉलेस मेकअप. क्योंकि अगर आपकी स्किन का टेक्सचर स्मूथ होगा तो मेकअप ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे से ब्लेंड होगा और अच्छी तरीके से प्लेस भी होगा, और उसके बाद जब वो पूरे कंप्लीट हो जाएगा तो इट विल लुक वेरी फ्लॉलेस. सो ये सारे स्टेप्स का बहुत अच्छे से आपको ख्याल रखना है. नाउ वैनिटी एसेंशियल टू क्रिएट दिस लुक, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं यूज करने वाली हूँ आज. यू कैन हैव अ लुक, यू कैन टेक अ पिक्चर सो दैट यू नो क्या क्या प्रोडक्ट्स हमारे यूज होंगे. सो एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट्स ही आई विल बी यूजिंग. Okay, if everyone has taken a screenshot, I'll move forward. Okay, so these are some pictures of Katrina Kaif and her husband. उनकी कुछ images है of their wedding. You can see कि from every angle, if you see left side से right side से picture है, and there are some pictures from the middle, different lighting की भी picture है. You can see the makeup is not at all poppy, बिल्कुल भी ज़्यादा extra नहीं लग रहा है. It's very minimal, ठीक है, बहुत ही कम कॉन्टोरिंग, ब्लशिंग एंड हाईलाइटिंग में. यू डोंट सी टू मच ऑफ कॉन्टोरिंग, ब्लशिंग, हाईलाइटिंग. लिपस्टिक कलर इट लुक्स लाइक हर ओन स्किन टोन. ठीक है, मतलब इतना न्यूट्रल, इतना नेचुरल है. ठीक है, आई मेकअप में देयर आर नो लैशेस आल्सो. ठीक है, सिर्फ शी इज वेयरिंग सम मस्कारा, ब्राउज को थोड़ा बहुत डिफाइन करा है. ठीक है, इट्स नॉट लुकिंग लाइक कि अलग से कुछ शेप दे रखा हो. साथ में एक बहुत ही मिनिमल आई मेकअप हो रखा है, लाइक कलर्स ऑफ ब्राउन एंड गोल्ड आई वुड से, क्योंकि वो आउटफिट से भी बहुत इजीली मैच होगा. और बेस भी अगर आप देखोगे तो इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक हर स्किन टोन, और बहुत हैवी बेस नहीं लग रहा, बिल्कुल ही कम से कम बेस लग रहा है. एंड इट्स एब्सोल्युटली मैचिंग विद हर नेक कलर एंड हर अदर बॉडी पार्ट्स. तो हमारा यही मोटिव रहेगा कि वी हैव टू डू ऑल द स्टेप्स और इस तरीके का एक इंस्पिरेशनल लुक क्रिएट करेंगे हम. सो दिस इज द लास्ट स्लाइड. ओके, just a moment guys. एक मिनट, just a moment. Okay, all right, so this was the slide. अगर आपको कोई questions है, कोई doubts है, या फिर आपके mind में presentation देखने के बाद कोई question raise हुआ है, you can always ask me. This is the best time to ask. Okay. Hi, good morning, Deep. Okay, Tushar, can you please check with them if
if they want to, to check who all are practicing today. Guys, please raise your hands whosoever is practicing with us. कौन है guys जो आज इस सेशन में हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं? Please let us know. Vandana, Ankita, okay. Apart from them, कुछ लोगों ने I guess late join करा है. I can see some more people. yeah. People are still joining. Yeah. I think Vandana and Ankita are the two that are doing this. Okay. All right, guys. No problem. So I'll start with the demonstration. ठीक है. सबसे पहले हमें क्लेंस करना, अपने स्किन को प्रेप करना बहुत ज्यादा जरूरी है. ठीक है. यू कैन सी मेरे फेस पे अभी कुछ बहुत ऑयली स्किन लग रहा है. ठीक है. इस ऑयल में काफी डर्ट चिपक गए होंगे फ्रॉम मॉर्निंग टू नाउ. ठीक है. उसको रिमूव करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. So I'll start with my cleansing. मैं एक कॉटन पैड लूंगी like this and I'll use this Nivea cleansing milk to remove the dirt and oil. इस तरीके से सबसे पहले बिल्कुल ही जेंटली यू हैव टू वाइप. Just a moment. I think there is a message from Shweta. Okay, no problem श्वेता, but आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो. मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्टली ये लुक ही करना है. यू कैन टेक एनी दुपट्टा ऑल्सो जो थोड़ा सा हैवी हो. यू कैन वेयर योर इयररिंग्स एंड ज्वेलरी, सम मांग टीका इफ यू हैव. Okay, so once the cleansing is done, हम करेंगे toner. Toner के लिए I'm using this toner by Jovi's. This is a cucumber toner. Okay, so once this is done, इसके बाद हम अपना next step करेंगे, which is a day lotion by Mom and World. And this has SPF 32, so मुझे अलग से SPF लगाने की need नहीं होगी. So I will take on the back of my hand and I'll just let my skin settle down. अभी भी I can see कि toner पूरी तरीके से dry नहीं हुआ है. So I'll just let it set. No problem योगिता, no problem. Hi Uzma, I can see आपने थोड़ा late join करा है. Then we have, I think we have Farida too. Hi Farida. Hello, ma'am. कैसे हो आप? Yeah, good. Great. आज आपकी first class है? Yes, ma'am. This is my Oh, demo wow. class. I hope आप काफी चीजें सीखे आज. So demonstration yes, is ma'am. already started. Sorry. Okay. Yes, ma'am. Thank Okay. you. So best of luck. Thank you, Enjoy. ma'am. Okay. Now I will apply my moisturizer. जहाँ पे भी मेरी थोड़ी ड्राइनेस है अभी विंटर्स में, आई हैव ऑयली स्किन बट स्टिल कहीं ना कहीं ड्राइनेस होती है एक ऑयली स्किन वालों में भी, डिहाइड्रेशन की कमी से, मॉइस्चर जब फेस से थोड़ा चला जाता है. सो सबसे पहले आई विल जस्ट blend my foundation here. Sorry, blend my moisturizer here. I'm so sorry about that. And उसके बाद इसको अच्छे से हम स्प्रेड करेंगे all over my face.
इस तरीके से जब तक मॉइस्चराइजर अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो जाता, यू हैव टू ब्लेंड इट. So once this step is done, so we'll move to our next step, which is our primer. So for my primer, I'm using this primer by the Balm Cosmetics. And I'll take the primer again on the back of my hand. और इसको जहां पे भी मेरी ऑयल सिक्रीशन बहुत ज्यादा है वहां पे मैं अप्लाई करूंगी. And wherever I have these open pores, so it is mostly on my T-zone. Like this. Also on my nose. Now remaining areas में या फिर मेरे acne marks पर भी मैं अप्लाई कर सकती हूँ क्योंकि वहां ओपन पोर्स हैं, तभी एक्ने जल्दी वहां पे एक्टिव रहते हैं. So once this is done, this is done, I'll move to my next step, which is my correction. ठीक है, correction करना बहुत ज्यादा जरूरी है face पे. So I will be using this Krylon Derma palette for my correction part, and I will be using this orange corrector, which is D34. और ये वाला पार्ट इससे जरूरी है क्योंकि यू कैन सी दिस मार्क्स ऑन माय फेस, एक्ने के मार्क्स हैं. ठीक है, यू कैन सी अकॉर्डिंग टू दिस एरिया, ये एरिया का जो स्किन टोन है वो इस एरिया का नहीं है. इट मींस दिस इज अनइवन स्किन टोन, डिस्कलरेशन भी कहते हैं इसे. और साइड्स ऑफ माय फोरहेड स्लाइटली ऑन माय डार्क सर्कल्स वाले एरिया पर, एंड साइड्स ऑफ माय नोज आर डार्क. उसको उस कलर को कैंसिल आउट करने के लिए वी हैव टू डू दिस करेक्शन. और द कलर व्हिच आई एम यूजिंग दैट इज वेरी गुड फॉर फेयर टू मीडियम स्किन टोन, या फिर वार्म पर भी आप लगा सकते हो. एंड आई टेक दिस ऑन माय स्पैचुला. विद द हेल्प ऑफ माय स्पैचुला और मिक्सिंग प्लेट में मिक्स करके प्रोडक्ट में निकालूंगी लाइक दिस. और इसको हम मिक्स कर देंगे. इस तरीके से मिक्सिंग करनी है हमें. ठीक है, इस तरीके से प्रोडक्ट एक्टिवेट हो जाएगा, ब्लेंड हो जाएगा. तो हम अप्लाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ माय सिंथेटिक ब्रश, व्हिच इज दिस. ओके, इसको मैं एप्लीकेशन के लिए यूज करूंगी फॉर माय करेक्शन. एंड द ब्रश व्हिच आई एम यूजिंग इज बाय कल्ट कटर. लेट मी टेक द प्रोडक्ट फ्रॉम द स्पैचुला फर्स्ट, and then let me apply the product जहां पे भी uneven tone है. Also on my mark, जो भी I can see, जहां पे भी डार्कनेस है सिर्फ वहां, ये नहीं कि हर जगह पे अप्लाई कर दोगे. जहां पे भी डार्कनेस है मैं सिर्फ वहीं पे टारगेट कर रही हूँ. इस तरीके से. अब मेरा यहाँ का डार्कनेस ज्यादा है इसलिए मैं थोड़ा ऑरेंज ज्यादा लगा रही हूँ इस तरफ. नाउ अगेन ऑन दिस साइड ऑफ माय मार्क्स. Now
on sides of my nose. Both the side में apply करने के बाद I'll take some more product on my mixing plate. और हमेशा धीरे धीरे you have to build your color. एक ही बार में इतना सारा कलर नहीं बनाना कि वो वेस्ट हो जाए. Again, I'll do the mixing. Okay, my earring just got dropped. Now, I'll do the application. Sides of my forehead, you can see there is some darkness. सोनू नहीं, आप करेक्शन डायरेक्टली लगा सकते हो फेस पर अगर आपको कोई आपके पास शेड है करेक्टर का जो बहुत डार्क है और आपको उसको थोड़ा सा लाइट करना है तो आप उसमें थोड़ा सा उनके शेड का फाउंडेशन मिला सकते हो, बट जनरली हम इसको डायरेक्टली लगाते हैं फेस पर. साइड्स पे लगा दिया. नाउ on this side also. Now on my under eyes. इस साइड पर भी अप्लाई करेंगे. Once this is done, just check कहीं पे if you need to put a bit more, जहाँ पे darkness ज़्यादा है. So once इतने part तक हो जाए, so we will just quickly clean our brush. क्योंकि हमें ये brush reuse करना है, so let's quickly clean that. Also our mixing plate. Spatula. And now I will be using my foundation, which will be my next step. हमारा next step है foundation का. So I will be using this foundation by Estee Lauder in the shade Cashew. This is a liquid foundation in matte finish. So it's not completely matte, but slightly towards matte. इसको भी मैं mixing plate पर लूंगी. और इसकी एप्लीकेशन के लिए भी आई विल बी यूजिंग दिस सिंथेटिक ब्रश. और मैं स्टार्ट करूंगी फ्रॉम वन साइड ऑफ माय फेस. इस तरीके से पहले अप्लाई करेंगे. Now on my chin. Farida, I'm using foundation by Estee Lauder in the shade Cashew. Tushar, please write down the name of this foundation which I'm using so that Farida के लिए वो easy हो जाए.
Can you please tell me the name? Yes, it is Estee Lauder and the shade name is Cashew. Now, once the application is done, I will be taking my stippling brush to do the blending. Start में पहले from my forehead करूँगी because of the मांग टीका और अपने हेडलाइन से प्रोडक्ट ब्लेंड कर दूंगी. Now on my face in a circular motion इस तरीके से हम रोटेट करेंगे अपने ब्रश को. Like this. Also on my nose. इस तरीके से जब हम सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करते हैं उसको बफिंग भी कहते हैं हम. Once this is done, हम दूसरे साइड को भी कवर करेंगे. Once the application is done, we will do the blending. Again in a circular motion. Now on the other side of my forehead. Now again इसको हम circular motion में blend करेंगे. Like this. Now I will be applying this on the area. उन areas पर भी apply करेंगे जहाँ पे मुझे थोड़ी और coverage देनी है, which is here on the marks. Now here also. अब extra coverage हम सिर्फ उसी जगह पे देंगे जहाँ पे जरूरत है. On my chin. Under eyes. On my lids. और जो भी ब्रश में बचा कुचा है वो बाकी एरियाज पर थोड़ा स्प्रेड कर सकते हैं. Now again we have to quickly blend और जो भी एरियाज में हमने थोड़ा सा कवरेज ज्यादा दिया वहां पे हल्की ब्लेंडिंग करेंगे. Like this. Now under eyes में we'll just run our brush from right to left in this wiping motion. Now lids पर भी हल्के हाथों से blend कर देंगे अपना foundation. Same here also. And under eyes पे from right to left.
Now on center of my forehead, इस तरीके से हम सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करेंगे. Like this. जैसे ही हमारा बेस हो जाएगा, so we'll move to our next step, which is my concealing. For my concealing, I'm using this concealer by Elegant in the shade Pure Beige. Yes, गुरप्रीत, आप डर्मा पैलेट भी यूज कर सकते हो, बट आपको कम से कम प्रोडक्ट लेना है ताकि वो बहुत हैवी ना हो जाए. Now इसको थोड़ा और कवरेज देने के लिए on my under eyes I will apply this inner and outer corner में, and on the areas जहाँ पे मुझे थोड़ी सी और कवरेज लेनी चाहिए. And a bit on my chin. Once this is done, we'll again take our stippling brush और उसको blend कर देंगे. Light hand से again, क्योंकि हम इसको coverage देने के लिए use कर रहे हैं. Now यहाँ पे भी again wiping motion. So once this is also done, हम करेंगे अपने इस बेस को set. So I will be using this HT setting powder by MyGlam. This is a translucent powder. इसको हम use करेंगे with the help of powder brush. Now we just have to set like this, इस तरीके से dab करके. हर एरिया में बस डैब ही करना है, ब्रश को ऐसे रब नहीं करना है फेस पर, नहीं तो वहां से प्रोडक्ट मूव होने के चांसेस होते हैं. सेम फोरहेड पर भी. Yeah, but actually ना दुपट्टा is already pin से set, so remove करना it will be very hassle right now. तरीके से जैसे ये सेट हो जाएगा, अब हमें आई वाले एरिया को भी सेट करना है. So I will be taking my I will be taking my synthetic brush. ठीक है, फिर जहां पे भी I can see crease आ रही है, ठीक है, वहां पे I will apply this and then जो पाउडर मैंने लिया है उसको क्विकली सेट करने के लिए मैं अप्लाई कर लूंगी. सेम स्टेप हियर ऑल्सो. पहले मैं जो भी क्रीज आ रही है उसको स्मूथ कर दूंगी. So once this is done, we'll move to our next step, which is HD Bronzer Duo by MyGlam.
That's the shade I will be using. ये मेरे शेड से 3 से 4 शेड डार्कर है, इसलिए मैं यूज कर रही हूँ ब्रॉन्जर. And I will be using this contouring brush to do the application. Starting from my jawline. Here also. Now on the area जहाँ हम V बनाते हैं, so that हमारे डबल चिन का जो एक इल्यूजन डेप्थ होता है यहाँ पे, वो थोड़ा अंदर की तरफ दिखे. Now once this is done, we have to do contouring of the cheek part. इस तरीके से हमें सर्कुलर मोशन में हाथ चलाना है. Same here. Again. बहुत ज्यादा कॉन्टोरिंग नहीं करना है आज, अदरवाइज वो टू मच ही लगेगा और फेस हमें बिल्कुल थोड़ा फ्लैट सा ही रखना है. ठीक है, तो वंस इतने पार्ट तक हो जाए, वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट स्टेप व्हिच इज आवर ब्लशर. For my blusher, I will be using this Milani Baked blusher in this shimmery shade. Okay, it has a slight shimmer on it. And I will be using my powder brush to do the application. Now, इस तरीके से slightly smile करके we can apply the blusher like this. Should look very smooth. Same here. So once the application is done, we'll move to our next step. So I will be doing my highlighting next, which is by my the Balm Cosmetics. And I will be using this bigger fluffy brush to do the application. Starting from my nose bridge. And then my chin. Chin मेरी थोड़ी छोटी है, इस वजह से to make it look very focused, I am applying the highlighter here. On my cupid bow. Now center of my forehead. Nose bridge. Now on the cheek area, like this, in this circular motion.
Same here. So it gives a nice glass effect. इस तरीके से highlighter लगाने से. Now, I forgot to do my nose contouring. So I will be using this flat brush and I'll do my nose contouring with the same bronzer. प्रांजल, आप पूछ रहे हो प्रोडक्ट नेम प्लीज. तो आपको कौन से प्रोडक्ट का नेम जानना है? मीन्स वो आप अप्लाई कर रहे हो ना, हाँ जी. वो प्रोडक्ट का नेम. अच्छा, सो मैं सारे का नेम बता ही रही हूँ. जैसे कि मैंने जो लास्ट प्रोडक्ट लगाया है दैट वाज Yes, बाय द बाम कॉस्मेटिक्स. ठीक है. ओके मिस. एंड जो मैं अब लगा रही हूँ दैट इज बाय माय ग्लैम. दिस इज अ ब्रॉन्जर जो मैं यूज करने वाली हूँ. ओके मिस, थैंक यू मिस. नाउ फॉर माय नोज कॉन्टूरिंग मैं इस तरीके से गाइडलाइन लेकर यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी. नाउ इसी लाइन को थोड़ी सी और डार्क कर देंगे. एंड सेम ऑन द अदर साइड. ठीक है, लाइक दिस. नाउ अ टिप हियर. सो वंस हमें ये दोनों लाइन अचीव हो जाती है, वी जस्ट हैव टू ब्लेंड बाहर की तरफ इस तरीके से. Same on the other side. जब तक इसकी हार्शनेस ना चले जाए, इस लाइन की हार्श लाइन, तब तक हमें ब्लेंड करते रहना है बाहर की तरफ. इस तरीके से. Now I'll add some more highlighter on my nose. थोड़ा सा और हाईलाइटिंग करूंगी मैं नोज पर. Okay, so once this is done, we'll do our brows. For my brows, I will be using this palette by Pack Cosmetics. And I will be using my angular brush, which is this angular brush which comes with a spoolie. Now I'll just brush my brows. Like this. ठीक है, जैसे ही ब्रश हो जाएगा, I'll dip my brush on the product. जो मेरे रूट हेयर से सबसे क्लोजेस्ट शेड होगा उसको मैं अप्लाई करूंगी ऑन द एम्प्टी एरिया. जहां पे भी एम्प्टीनेस है वहां पे हम अप्लाई कर देंगे ये. इस तरीके से. नाउ जो आगे वाले हेयर है वहां पे हमें स्ट्रोक्स खींचने हैं विद द हेल्प ऑफ द टिप ऑफ दिस एरिया. इस तरीके से हम स्ट्रोक्स ड्रॉ करेंगे. ठीक है, लाइक दिस. नाउ I will fill this part. इस तरीके से. ठीक है, नाउ यू कैन सी द डिफरेंस कि हमें कितना नेचुरल लगना है. और थोड़ा सा फिल करते इट लुक्स लाइक दिस. सेम वी हैव टू डू हियर.
इस तरीके से। नाउ ऑन द फ्रंट एरिया हमें इस तरीके से दोबारा स्ट्रोक्स ड्रॉ करने हैं। इस तरीके से, और हम फिल करते हुए जाएंगे, क्योंकि मेरे कंपेरेटिव टू दिस साइड, इस साइड मेरे आगे की तरफ हेयर इतने ज्यादा नहीं है, उस वजह से मुझे एक आर्टिफिशियली वो लाइन ड्रॉ करनी पड़ रही है। ओके, आई थिंक दिस मच इज इनफ। अब हम आते हैं अपने आई मेकअप में, विच हैव टू बी वेरी न्यूट्रल, बहुत ही सॉफ्ट रहेगा। So I will be using this palette by Huda Beauty, Rose Gold Remastered. These are the shades we have here. I will be starting with this color. It's a brown color, and the name of this color is Cocoa. और हम स्टार्ट करेंगे विद आवर फ्लफी ब्रश लाइक दिस, और मैं अपने ब्रश को डिप करूंगी ऑन दिस ब्राउन कलर। और अगर कोई क्रीज लाइन आ रही है, अगर उसको हम पहले हटा देंगे, ठीक है, लाइक दिस। नाउ ये जो हमारा डेप्थ होता है ना ऑफ द क्रीज, हम वहां पे अपना ये फर्स्ट कलर प्लेस करेंगे बिल्कुल ही रफली ऑन दैट एरिया, और उसको इन अ सर्कुलर मोशन ब्लेंड कर देंगे। और ब्रश को हमेशा पीछे से पकड़ना है, पेंसिल की तरह पकड़ के नहीं यूज करना है। सेम आउटर कॉर्नर में डिपॉजिट कर रही हूँ, फिर उसको धीरे धीरे हम प्रोडक्ट को ऑल ओवर द क्रीज ब्लेंड कर देंगे। Vivo 1851 मैं अभी फर्स्ट ट्रांजिशन कलर यूज कर रही हूँ, विच इज अ डार्क ब्राउन शेड, और उसको मैं अपने क्रीज लाइन में ब्लेंड कर रही हूँ लाइक दिस। ठीक है, सिर्फ हमें अभी ब्लेंडिंग ही करनी है। इतना अचीव हो जाए, वील मूव टू द अदर साइड। यस मोहसिन, डू यू हैव अ क्वेश्चन? आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हो मोहसिन, आपने हैंड रेज करा है। तुषार, प्लीज हेल्प हिम। Giving him the permission. हेलो हेलो मैम, हाय, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। मैम मुझे एक क्वेश्चन था इसके बारे में। एक्चुअली कुछ एजिड लेडी आती हैं, उनकी आईज ना यहाँ से बहुत अंदर गई हुई होती है। हम कोई भी आई शेडो अप्लाई करते हैं इट्स पार्ट्स पे ना, तो वो ना अंदर की तरफ चले जाता है। अगर हम बहुत ज्यादा बाहर निकालते हैं तो बहुत अजीब सा लगता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सो उसमें आप क्या करोगे, पहले तो ये बताइए आप कैसे शेड्स यूज करते हो उनपे? तो मैम स्मोकी शेड यूज किया था मैंने अभी 2-3 दिन पहले ना। मतलब पूरे आई में स्मोकी करा था, हाँ जी, हाफ में। और आगे की हाफ में तरफ कौन सा शेड लगाया था? आगे की तरफ मैंने इसमें गोल्डन शेड दिया था। हम्म। अब गोल्डन भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, गोल्डन कुछ होता है, रोज गोल्ड है ना। मैंने लाइट गोल्ड दिया था मैंने उसमें। अच्छा ठीक है, तो लेकिन वो बिल्कुल ही प्रॉब्लम क्या थी, जो ये हमारा आईलिड एरिया होता है ना, हम्म, इस पे इसको बहुत उठा के ना बहुत खींच के करना पड़ता है, और उसके बाद जब हाँ छोड़ते हैं तो वो अंदर चला जाता है, शो ही नहीं होता बाहर। हाँ, ये बात तो है। अगर ऐसा। किसी के बहुत ज्यादा रिंकल्ड आए हैं, ठीक है, हाँ जी, इस हाँ जी। एरिया में बहुत ज्यादा झुर्रियां है, ठीक है, तो उस पे हम क्या करेंगे, एक तो बहुत ज्यादा हम लाइटर टोन भी नहीं ले सकते, लाइटर गोल्ड भी नहीं ले सकते, आपको एक न्यूट्रल टोन लेना पड़ेगा, जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अब जैसे कि आई शेडो पैलेट है, ठीक है, एक ये गोल्ड है, ठीक है, विच इज अ प्योर गोल्ड, ठीक है, एक ये है जो गोल्ड विथ पिंकिश टोन है, रोज गोल्ड जैसा, ये थोड़ा यस कॉपरिश मैम। गोल्ड है, ठीक है, और ये हो गया थोड़ा न्यूट्रल सा कलर,
जो बिल्कुल डार्क नहीं है, लाइट नहीं है। तो आपको उनके जैसे आई में इस तरीके का न्यूट्रल टोन यूज करना है। इतना ज्यादा गोल्ड यूज करोगे तो वो एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है, हाँ जी जब हाँ आप जी, कुछ ऐसी इसको छोड़ो। प्रॉब्लम थी। और अगर ओके आप मैम। ऐसा रोज गोल्ड शेड लगाओगे तो भी उनके आई में वो इतना जचेगा नहीं, बिकॉज ऑफ द एज ऑल्सो, ठीक है। तो इस तरीके Okay, के न्यूट्रल टोन जिसके अंदर एक ब्राउनिश टच हो, मतलब गोल्डन विद ब्राउनिश टच, जैसे कि आप ये कलर देख सकते हो। तो आप ओके इनर साइड पे वो लगा सकते हो ताकि वो पॉप आउट भी हो लेकिन एक्स्ट्रा भी बाहर की तरफ ना लगे, अजीब ना लगे, समझे, एज के हिसाब से। ओके मैम, थैंक यू। ओके, you're welcome. Now again, हम क्रीज लाइन पर ये अप्लाई करेंगे और इस तरीके से सर्कुलर मोशन में हम अपने प्रोडक्ट को ब्लेंड करेंगे। Now I'll take some more और इसको आउटर कॉर्नर में पहले डिपॉजिट करेंगे और फिर धीरे धीरे उसको अंदर की तरफ प्रोडक्ट लाके ब्लेंड करेंगे, ठीक है। लाइक दिस। अब इसको सिर्फ ब्लेंड करते हुए जाना है। तो ये मेकअप पूरा ब्लेंडेड होना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ पैच अलग से लगा रखा है। तो जितनी ब्लेंडिंग हो सके यू हैव टू डू इट विद योर फ्लफी ब्रश। और ब्लेंडिंग के चक्कर में आप ये स्पेस छोड़ना मत भूलना विच इज आवर ब्राउ बोन, यहाँ पे हाईलाइटिंग भी करना है। इस तरीके से ये साइड हो गया। अब इस साइड को भी हमें सेम ब्लेंड करना है, like this in a circular motion. Okay, this much of blending is more than enough. एक मिनट। Now अब हम क्या करेंगे? Now we have to pick a shade from the palette, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने अभी बताया था इतने सारे टाइप के हमारे गोल्ड होते हैं। आउटफिट में ऑलरेडी गोल्डन एम्ब्रॉयडरी है तो हमें गोल्ड शेड ही यूज करना है। सो वी कैन यूज दिस गोल्ड, ठीक है। इट इज अ कॉपरिश गोल्ड जो इतना एक्स्ट्रा भी नहीं लगेगा, इतना कम भी नहीं लगेगा अकॉर्डिंग टू डे टाइम। इसको हम विद द हेल्प ऑफ अ रिंग फिंगर लेंगे और जिन एरियाज पर हमने ये कलर नहीं लगाया विच इज अ लिड, वहां पर हम अप्लाई करेंगे गोल्ड। जहां तक आप अपना फिंगर पुट कर सकते हो वहां तक अप्लाई करना है, रेस्ट आपको ब्रश लेकर करना है। सेम हियर ऑल्सो। इस तरीके से जैसे एप्लीकेशन हो जाए we'll again move to our fluffy brush पे वापस जाएंगे हम। एंड अगेन हम अपने उस ब्राउन कलर के टोन पर जाएंगे, द ब्राउन कलर, और
इस ग्लिटर और इस ब्राउन के कलर में बीच में जो थोड़ा सा एक स्पेस आ रहा है उसको फिल भी करना जरूरी है, लाइक दिस। ठीक है, थोड़ी सी डेप्थ बढ़ा देंगे आउटर कॉर्नर में, बिकॉज आई हैव अ स्लाइट हुडेड आई। ठीक है, उसका भी ख्याल रखते हुए मैं इस तरीके से उसको ब्लेंड कर दूंगी। ठीक है, लाइक दिस। इस तरीके से अब इसको बाद में जब ये साइड हो जाएगा तब और ब्लेंडिंग करेंगे। सेम हियर ऑल्सो। Now, once the application is done, let's just blend. अब ब्लेंडिंग के वक्त ये ध्यान रखनी है कि ग्लिटर लगा हुआ है, ग्लिटर शेड लगा हुआ है, तो आप बिल्कुल रफली हाथ नहीं चला सकते हो, ग्लिटर अदरवाइज फैल जाएगा क्योंकि फेस का मेकअप ऑलरेडी हो चुका है। सो आपको बिल्कुल से वो ब्राउन वाले एरिया पर ही विद द टिप ऑफ योर ब्रश ही अपना प्रोडक्ट चलाना है। Like this. Okay. So once इतने पार्ट तक हो जाएगा, so we have to change our brush now. And let me see कौन सा ब्रश अब हम यूज कर सकते हैं। So अब मैं ये एक स्मॉलर ब्लेंडिंग ब्रश यूज करूंगी और मैं उसी ब्राउन कलर में अपना ब्रश को डिप करके लोअर लैश लाइन पर भी यही शेड लगाऊंगी। Like this. Same here also. यहाँ पे शेडिंग करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। A bit more. So once the blending part is done, we'll move to our next step first, which is our kajal. So for my kajal, I'm using this kajal by My Glam. Yes, गुरप्रीत, आपने कुछ पूछा है क्या? Yes, उज़मा, आई शैडो हम पहले भी कर सकते हैं, then फेस कर सकते हैं। Yes, Gurpreet, if you have any question, you can ask me. Tushar, she's asking to unmute. A waterline पर I'll apply my kajal. मैं पूछ रही थी जो आपने कराए फ्रंट तक लेकर आए हैं नीचे की शेडिंग। क्या पूछा आपने? शेडिंग मैम आप आगे तक लेकर आ रहे हैं इनर आई के? हाँ, इस वाले में मैं आगे तक लेकर आ रही हूँ। ओके ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। वाटर लाइन पे मैंने अप्लाई कर लिया, ऑल्सो ऑन माई टाइट लाइन विच इज दिस एरिया। नाउ अगेन हम उसी ब्रश पर स्मॉलर ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे और जहां जहां काजल थोड़ा बहुत नीचे तक आए उस एरिया को हम ब्लेंड करेंगे।
put some more kajal on this side. ठीक है, इस तरीके से अप्लाई करेंगे. नाउ वील जस्ट चेक कि अगर हमें द ग्लिटर जो हमने लगाया वो और कहीं मिसिंग है तो उसको पहले केयरफुली देखेंगे. बट इट लुक्स फाइन टू मी. ठीक है, सो आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एल्स. अब हम क्या करेंगे, अब हाईलाइटिंग करेंगे ऑन द ब्राउ बोन. लेट मी फाइंड माय ब्रश. इस तरीके के कोई फ्लैट ब्रश से हम अपने ब्राउ को हाईलाइट करेंगे. और फॉर माय हाइलाइटर मैं अपने हुडा पैलेट से ही ले रही हूँ. आई विल बी यूजिंग दिस शेड. ओके, द नेम ऑफ द शेड इज मून डस्ट. इस तरीके से अपने ब्राउ बोन पर ये शेड लगा देंगे. ठीक है, लाइक दिस. सो वंस दिस इज डन, अब इसी शेड को अपने टीयर डक्ट एरिया पर भी लगाना है. हाँ, इसको भी थोड़ी सी ब्लेंडिंग कर देंगे. Okay, this much is enough. Now we'll do our mascara. For my mascara, I'm using this mascara by My Glam. And just a moment, guys. Now हम अप्लाई करने के लिए पहले यहाँ से पिक करेंगे ऑन द आउटर कॉर्नर, देन इनर कॉर्नर, इस तरीके से. सेम हियर, आउटर कॉर्नर से पहले पिक करेंगे, देन मिडिल एंड इनर कॉर्नर. इस तरीके से. Now on the lower lash line also we have to apply first और फिर इसको हल्के हाथों से नीचे पुश करना है प्रोडक्ट को. इस तरीके से. Now once इतने पार्ट तक हो जाएगा, so we'll move to our next step, which is our lipstick. So let me see which lipstick should I use. Okay, so the lipstick which I'm using first, which is by Jacqueline Matte Magic, which is this nude shade. ठीक है, सबसे पहले मैं ये अप्लाई करूंगी. And it's my personal lipstick.
It's a very quick dry lipstick. बहुत जल्दी dry हो जाता है. And the name of this shade is Sassy 21. Next, इसके ऊपर I will be using this Huda Beauty Demi Matte Lipstick in the shade Shio. क्योंकि मैं नहीं चाहती पूरा ये मैट रहे, मैं चाहती थोड़ा सा एक ग्लॉसी इफेक्ट आए. So from the same family, मैं ये ग्लॉसी शेड यूज कर रही हूँ on top of it. Okay, so the lipstick part is also done. Mohsin, do you have any question again? आप पूछ सकते हो. हेलो मैम, हाँ जी. मैट के ऊपर ग्लोसी लिपस्टिक लगा सकते हैं हम? हाँ बिल्कुल लगा सकते हो, बट अगेन उसका ग्लॉसी की कंसिस्टेंसी थोड़ी कम होनी चाहिए. और जो मैंने ग्लॉसी लिपस्टिक लगाई है वो थोड़ी पिगमेंटेड ग्लॉसी लिपस्टिक है, मतलब वो एक लिप ग्लॉस नहीं है. ठीक है, उसका टेक्सचर ग्लॉसी पर वो एक लिप ग्लॉस नहीं है. ओके मैम एक ये पूछना था, जो आपने इसका हाईलाइट किया हुआ है, ब्लशर एंड हाईलाइट, ये किस तरह से क्रिएट किया है? कौन सा हाईलाइट? ये वाला? फेस के ऊपर. यस मैम. ये मैंने क्रिएट करा है. जो हमारा आई शेडो ब्रश होता है ना, हाँ फ्लफी जी, हाँ ब्रश, जी. वो जी, मैंने जी. ब्रश लिया, उसपे मैंने थोड़ा डिप करके मैंने क्या करा, इस तरीके से सर्कुलर मोशन में लगाया. कोई लाइन ड्रॉ नहीं करी, इस तरीके से बस ब्लेंड करते गई मैं. ठीक है, जब तक Yes. ये वाली फिनिशिंग नहीं आई, मैं ब्लेंड इसी तरीके के मोशन में, सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करते गई. ओके, बस बहुत यही अच्छा करा लग है रहा और है. कुछ नहीं करा है. बहुत प्यारा लग रहा है. थैंक यू, थैंक यू. एंड नाउ लास्ट हमारा बचा है, विच इज आवर मेकअप फिक्सर. आई एम यूजिंग दिस बाय फ्लावर ब्यूटी. एंड इसको हम थोड़ा डिस्टेंस से लगाएंगे. Let it settle down. Shweta, lipstick brand both are. So the first one is by Jacqueline. Okay, the shade name is Sassy, and the number is 21. And the second shade is by Huda Beauty Demi Matte Collection. Shade name is Shio. Okay, गुरप्रीत आपने भी हैंड रेस करा, आपका क्या क्वेश्चन है? Gurpreet, can you please unmute yourself? I'm giving you the permission. मैम लुक रिव्यू कराने के लिए किया था. Okay. So guys, my look is done. I hope आपको ये look अच्छा लगा है, and I hope I'm the inspiration part जो हमने कैटरीना कैफ का फॉलो करा है. I have followed the same rules जो उनके वेडिंग पर shades यूज हुए हैं, कलर्स यूज हुए हैं. So I'm quite liking this look. I hope you guys are also liking. So now we can do the look review starting from Gurpreet. Perfect. Gurpreet, can you please turn on your camera? Guys, आप में से और जिन लोगों ने भी ये लोग किया है, please turn on your cameras. मैम मैंने बस आईज का किया था क्योंकि बच्ची Okay. छोटी थी, तो मैंने बस आईज का किया था. जी जी. दिख रहा है मैम? ओके. हाँ, आई मेकअप में आप थोड़ा सा और ऊपर जा सकते थे. इनके आई में ऊपर अभी भी स्पेस है. ठीक है, देख रहे हो कितना गैप आ रहा है ब्राउ बोन और आई मेकअप के कलर में. ओके मैम. ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर जाके या तो और ब्लेंडिंग कर सकते थे आप, ताकि थोड़ा और ऊपर कलर पहुंच जाए. और मुझे जी. ब्राउ बोन का हाईलाइटिंग इतना दिख नहीं रहा है. ठीक है, ज्यादा एंड ऑल्सो जो आपने, वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट जो आपका ग्लिटर शेड है ना, वो जी. एक दिख रहा है कि इस जगह पे जाके स्टॉप हो रहा है. वो अच्छे से मर्ज नहीं हो रहा आपके उस ब्राउन कलर से. समझे? और ऊपर जे वाली लाइन में मैम. हाँ, ये जो ग्लिटर जो यहाँ स्टॉप हो रहा है ना, जी वो जी. पता चल रहा है कि अच्छा यहाँ जाके रुका है और यहाँ पे ब्राउन शेड स्टार्ट हो रहा है. तो वो Okay. पता नहीं चलना चाहिए कि अच्छा इसके बाद ये लगा रखा है. ऐसा लगना चाहिए मर्ज्ड है बिल्कुल आई मेकअप के साथ. ओके मैम. साथ में एजेस में भी मैंने थोड़ा ब्राउन शेड लगाया था बाद में. ठीक है, डार्क glitter के थोड़ा. बाद आपका वो नहीं दिख रहा है यहाँ. ओके यहाँ मैम. पे एक होना चाहिए. ठीक है मैम, ओपन करो.
एंड काजल आप थोड़ा सा और डार्क कर सकते हो, ठीक है, इनके आईज में। और नीचे आपने शेडिंग करी है? हाँ जी मैम, ओके, शेडिंग भी थोड़ी ज्यादा हो सकती है, और इनके ज्यादा। जैसे आई शेप में, ठीक है, जी। जैसे कि मुझे दिख रहा है कि इट्स लाइक वेरी क्लोज टू आलमंड शेप, ठीक है, वेरी क्लोज टू आलमंड शेप आया है इनका। तो जी। उसमें क्या करना चाहिए था आपको, थोड़ा सा और थिक काजल आप लगा सकते थे, और उसको अच्छे से ब्लेंड करके वो Blend ब्राउन शेड भी नीचे दिख सकता था, क्योंकि इनकी आई शेप बहुत अच्छी है मेकअप के लिए, ठीक है। ओके मैम। तो इस पे आप अच्छे से कर सकते मैम थे जब तक इसको। आप रिव्यू कर रहे हैं, बाकी मैं जब तक इसको थोड़ा जो हाँ आपने हाँ गलती हाँ, बताई ठीक ठीक है, करती हूँ। ठीक है, ओके। ओके। डू वी हैव एनीवन एल्स? या पहले लोगों ने पूछा था, वंदना एंड अंकिता ने हैंड रेज किया था जब मैंने शुरू में पूछा था, सो आई होप मे बी लोग किया है। ओके, सोनू डू यू हैव अ क्वेश्चन? आपका कोई क्वेश्चन है? जस्ट अ सेकंड अंकिता, हम आपके पास आते हैं। हेलो। हाय सोनू। हाय। मैं ये बोल रहा था, जैसे मैं जो फाउंडेशन लगाता हूँ तो वो क्रेकी क्रेकी क्यों लगता है? क्रैकी, आप अच्छे से स्किन केयर करते हो? हाँ, मतलब वो तो करता क्लेंजिंग, हूँ। टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग? जैसे जो फाउंडेशन है मेरा फॉरएवर 52 का करता हूँ यूज। और अच्छा। अगर मैंने क्रायोलॉन का वो कंसीलर डबल लेयर कर देता तो उससे क्रेकी नहीं लगता, क्रैकी। और अगर फाउंडेशन यूज करता तो वो पास से आके क्रैकी क्रैकी से लगता है। मतलब तो ऐसा नेचुरल ओके नेचुरल नहीं लगता वो। ओके। तो सोनू, ये आप अपने क्लाइंट्स पे करते हो कि खुद पे करते हो? क्लाइंट्स पे करता हूँ। ओके, सो देखो, डिपेंड करता है कि आपके क्लाइंट का स्किन टाइप क्या है, ठीक है। हमेशा जरूरी नहीं है कि हर स्किन टाइप पर वो फॉर्मूला सूट करे, ठीक है। और मैं तो और आपको ये क्या है ना। अंडरस्टैंड करना जरूरी है वो। अच्छा, और मैं ये बोल रहा था मैम, जैसे जो फाउंडेशन ब्रश होता है ना, मैं हम्म। वो ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करता हूँ। हाँ, वो भी ठीक है। ब्यूटी ब्लेंडर इज ऑल्सो फाइन। वो ठीक है ना? ठीक है, लेकिन कोई कोई फॉर्मूला में, जैसे बहुत क्रीमी फॉर्मूला है, ठीक है, हाँ उसमें आपको ब्रश यूज करना चाहिए। जैसे मैंने अपना स्टिपलिंग ब्रश यूज करा था, उस हाँ। तरीके के ब्रश से क्या होता है, वो इवनली स्प्रेड होता है। और ब्यूटी ब्लेंडर में क्या है, आप एक एक एरिया को धीरे धीरे कवर करते हो। तो हाँ। कुछ कुछ फॉर्मूला के लिए ब्रश नीडेड होती है, ठीक है। ओ, ओके। हम्म। और वैसे मैडम वो फॉरएवर 52 ठीक है, मतलब वैसे तो ब्राइडल के अच्छा लिए? फाउंडेशन होता है, बट वो थोड़ा सा ना टुवर्ड्स ड्राई होता है, तो आप ऑयली स्किन पे लगा सकते हो बहुत इजीली, कॉम्बिनेशन एंड ऑयली स्किन। और अगर ड्राई हो तो फिर? ड्राई है तो आपको डबल मॉइस्चराइजिंग करनी पड़ेगी उस ड्राई स्किन पर। और सारे फाउंडेशन के अलावा सारे प्रोडक्ट्स आपके डूई होने चाहिए, मतलब डूई प्राइमर, ठीक है। आपका ओके। जो भी मेकअप का प्रोडक्ट का फिनिश होगा आफ्टर फाउंडेशन, वो सारे रेडिएंट वाले होने चाहिए, मतलब इल्यूमिनेटिंग कंसीलर देखें आपने, हाँ जिसमें थोड़ा शाइन होता है ना कि मैट हाँ। होता है, वो मेकअप फिक्सर भी डूई फिनिश होना चाहिए इन दी एंड, तब तो जाके मैडम, वो सेट होगा। कंसीलर के लिए वो क्रायोलॉन की क्रायोलॉन सुप्रा का यूज कर सकते हैं, जैसे आपने एलिगल का किया था, तो हम्म। उसकी जगह क्रायोलॉन का कर सकते हैं। हाँ, आप उसकी जगह क्रायलॉन भी कर सकते हो, बट क्रायलॉन में क्या होता है, कवरेज बहुत अच्छी होती है, ठीक है। हाँ अब किसी हाँ। का बहुत डीप डार्क सर्कल्स है तो आप वो यूज करो, अदरवाइज आप रेगुलर कोई प्रोडक्ट भी यूज कर सकते अच्छा। हो, ठीक है। ओके, थैंक यू मैम। ओके, यू वेलकम। आई कैन अंडरस्टैंड सोनू, अभी भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है आपके दिमाग में, क्योंकि ये डेडिकेटेड क्लास नहीं है उससे रिलेटेड। सो मैं आपको एक सजेशन दूंगा, हमारी बेस मेकअप की क्लास होती है, स्किन केयर और बेस मेकअप की, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपको स्किन केयर कैसे करना है, अलग अलग स्किन टाइप्स के ऊपर कौन सा प्रोडक्ट जो है किस स्किन टाइप पर जाएगा, केकी ना हो या फिर क्रैक्स ना आए, ये सारी चीजें जो है वो उस सेशन में आपको बताया जाता है। सो अगर आप वो सेशन ले लेंगे तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि काफी जो डाउट्स हैं आपके इस पर्टिकुलर एरिया के, वो सॉल्व हो जाएंगे। मैम एक क्वेश्चन और है मैम। जी हाँ जी। जी। मैम जैसे मैट फाउंडेशन है और हम्म। इसमें किसी की स्किन ड्राई है, तो उसमें जैसे कुछ फेस ऑयल मिक्स कर सकते हैं? जी हाँ, आप मिक्स कर सकते हो, लेकिन अगेन वो डिपेंड करता है कि आपका फाउंडेशन मैट है। जैसे हमारे हाँ क्रीमी मैट भी आते हैं और हमारे लिक्विड में भी मैट आते हैं, ठीक हाँ है। अब क्रीमी में आप मिक्स कर सकते हो, लिक्विड में आई हाँ। वोंट रेकमेंड यू कि आप ऑयल मिक्स करो, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी पतली कंसिस्टेंसी का होता है, ऑयल मिला के और पतला हो जाएगा अगर उसका कवरेज अच्छा। वाला फाउंडेशन होगा। तो आप ओके क्या ओके। करोगे, अगर आप लिक्विड फाउंडेशन लगा रहे हो किसी पे, तो आप हाँ। फेशियल ऑयल फेस पर ही लगा देना, ठीक है। ओके और ओके। क्रीमी लगा रहे हो तो थोड़ा फाउंडेशन में मिक्स कर सकते हो।
ठीक है, ओके, थैंक यू। You're welcome. Thank you. Okay, yes, Ankita, can you please turn on your camera now? Ankita, can you please turn on your camera and unmute yourself? Okay. Yeah. Hi Ankita. थोड़ा सा आपको ना कोई और लाइट में जाके थोड़ा क्लोजअप दिखाना पड़ेगा आई मेकअप, जहाँ पे आपके फेस पे लाइट आ रहा हो। अभी इट लुक्स वेरी अंधेरा सा। हाँ, दिस इज बेटर। बस थोड़ा स्ट्रेट स्ट्रेट देखिए कैमरा में और आईज क्लोज। यस, मोर क्लोजअप। हाँ, थोड़ा और क्लोजअप। ओके, सो द प्रोडक्ट प्लेसमेंट इज वेरी नाइस। ठीक है, जो आपका फर्स्ट कलर है उसका प्लेसमेंट इज वेरी गुड। इट्स जस्ट कि आपको उसमें ब्लेंडिंग करने की नीड है, क्योंकि यू स्टिल हैव स्पेस ऊपर और एक हार्श लाइन दिख रही है ब्राउन की। ठीक है, सेम फॉर योर जो आपने उसके बाद लिड्स पर जो शेड लगाया है उसके और उस ब्राउन के बीच में एक लाइन दिख रहा है। ठीक है, कि आपने वहीं तक प्लेस करा है, वो नहीं दिखना चाहिए। मतलब सिर्फ ब्लेंडिंग की नीड है आपको, आपको प्लेसमेंट पता है। सो यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन योर ब्लेंडिंग। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर फेस एंड अदर फीचर। तो आपका फेस का फाउंडेशन शेड लुक्स परफेक्ट, आपके नेक से मैच हो रहा है। एंड लिपस्टिक शेड इज ब्यूटीफुल। एंड ब्राउज में लुक स्ट्रेट, एक बार सीधा देखिए। ओके, ब्राउज का आपने फिलिंग बहुत अच्छी करी है। ठीक है, इट लुक्स वेरी नाइस। इट्स जस्ट कि जब आप नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर यू गो एंड गेट योर थ्रेडिंग डन, एक और लेयर आपको हटाने की नीड है। ठीक है, एक और लाइन हटाने की नीड है। इट्स वेरी थिक अकॉर्डिंग टू योर फेस शेप। ठीक है, फेस शेप के अकॉर्डिंग ब्राउज बनाने चाहिए। सो दैट्स इट, बट फिलिंग अच्छी है। एंड आपका फेस का कॉन्टूरिंग, ब्लशिंग, हाईलाइटिंग मुझे थोड़ा सा भी नहीं दिख रहा। मतलब अगर जो कॉन्टूरिंग है वो भी शायद बहुत नीचे आ गया है। ठीक है, थोड़ा इस तरीके से प्लेस होना चाहिए एंड देन स्टेप बाय स्टेप दिखना चाहिए। तो वो थोड़ा सा और आप इंक्रीज कर सकते हो। जॉ लाइन पे भी कॉन्टूर करा है राइट आपने? ओके, उसकी भी एक लाइन दिख रही है। इट नीड्स टू बी, मतलब आपको सिर्फ ब्लेंडिंग में वर्क करना है मेन। ओके, देन लुक स्ट्रेट एक बार। ओके, ऑल्सो ओके, द काजल पार्ट इज फाइन। इट्स जस्ट आपको मस्कारा थोड़ा और अच्छे से लगाना है सो दैट आपके एक एक हेयर अच्छे से दिखे। ठीक है, अभी क्या लग रहा है, या तो आपकी डेंसिटी कम होगी लैशेस की, राइट? हाँ, तो आप क्या कर सकते हो, अगर किसी की बहुत ज्यादा डेंसिटी कम है तो उस केस में आप लैशेस लगा सकते हो इस टाइप के मेकअप में। अदरवाइज अगर आपकी ठीक ठाक डेंसिटी है तो यू कैन स्किप द लैशेस पार्ट। ठीक है, बट लुक्स फाइन, यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन योर ब्लेंडिंग। So great job. Okay. Now we have. Vandana. Okay, hi. Hello, ma'am. How are you? Very well, thank you. How are you? Very well, ma'am. Great, great. Looking very pretty. जैसे कि जब मैं ऐसा लुक करती हूँ तो आप ही एक होते हो जो प्रॉपरली ड्रेसअप होते हो। सो लुकिंग वेरी नाइस। एंड लेट्स टॉक अबाउट योर मेकअप नाउ। पहले आई मेकअप से स्टार्ट करते हैं। ओके, लुक्स नाइस, लुक्स वेरी नाइस, अच्छे से ब्लेंडेड है। ठीक है, इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। लोअर लैश लाइन में आई डोंट सी एनी ड्रॉप शैडो। नीचे के तरफ अच्छे से होना चाहिए। थोड़ी आई सूनी लग रही है उस वजह से। ठीक है मैम, मुझे लगा था कंफ्यूजन होगी थी, आपने ड्रॉप शेडो नहीं किया है तो फिर अच्छा, जल्दी जल्दी अच्छा। मैंने बहुत लाइट ड्रॉप शैडो करा है, पर करा है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा अगर आप कर देते एंड देन अगर आप थोड़ा सा व्हाइट काजल सिर्फ अपने लास्ट हेयर तक लगाते तो वो आई थोड़ा ओपनिंग लगता। अभी थोड़ा सा सुनी सुनी सी आईज लगती है। ठीक है, और कंपेरेटिव टू अदर डेज मुझे लग रहा है आपने अपना ब्राउ का जो फिलिंग करा है ना, जो शेड चूज करा है, वो आज गलत करा है, क्योंकि बहुत ज्यादा लाइट लग रहा है मुझे। थोड़ा और एक शेड डार्क हो सकता है। आज थोड़ा सा ना फ्लैट सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है थोड़ा और एक शेड डार्क हो सकता है। ठीक है, बट फिलिंग अच्छी करी है आपने। अगेन लिपस्टिक शेड मुझे इतना मैचिंग नहीं लग रहा है कंपेरेटिव टू दिस लुक। ठीक है, थोड़ा सा न्यूडिश विद पिंक के जगह ना थोड़ा ब्राउनिश टोन में आ सकता था। ठीक है, या फिर एक प्रॉपर न्यूडिश टोन में आ सकता था। तो लिपस्टिक इतनी कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही। एंड चीक्स दिखाइए थोड़ा। ओके, इतना समझ। ओके,
सो आज आपका क्या हो रहा है, कॉन्टोरिंग ज्यादा दिख रहा है, और कॉन्टोरिंग के ज्यादा की वजह से जो बाकी दो चीजें आपने लगाई है वो थोड़ा ओवर पावर कर रहा है कॉन्टोरिंग। तो आज के दिन आपको कॉन्टोरिंग थोड़ी माइल्ड रखनी थी, मतलब थोड़े सॉफ्ट कलर यूज करने थे। अदरवाइज कॉन्टोरिंग की प्लेसमेंट इज वेरी नाइस, ठीक है। एंड योर बेस कलर लुक्स लिटिल वाइट, ठीक है, आपका बेस कलर थोड़ा लाइट लग रहा है। सो आप कोई ऐसा फाउंडेशन खरीद लो, अगर आपको इस फाउंडेशन को यूटिलाइज करना है, एक शेड डार्कर फाउंडेशन खरीद के मिला के अपना शेड बना लो, दैट कैन बी बेटर, ठीक है। बट यू आर लुकिंग वेरी प्रिटी, सो ग्रेट जॉब। थैंक यू मैम। Anyone else, guys? Do we have anyone else जिनका look review करना है? Or if you have any question? तुषार, I need to fix my camera, just a moment. Yeah, sure. Okay, guys, so we'll go through the chat box to see some questions. Just a second. Okay. Okay, Laba is asking, ma'am, अगर हम मोनोक्रोमेटिक कलर यूज करते हैं तो क्या हमें लिपस्टिक भी मोनोक्रोमेटिक कलर ही यूज करनी है, और क्या हम डिफरेंट लिपस्टिक कलर भी यूज कर सकते हैं? आप डिफरेंट कलर यूज कर सकते हो, ठीक है, ऑन योर लिप्स। बट अगर आप आई मोनोक्रोमेटिक रख रहे हो, दैट इज फाइन। लिप्स आप अलग चूज कर सकते हो, बट अगेन आज वाले केस में हमने सिर्फ इसलिए नहीं करा क्योंकि इट्स कैटरीना कैफ इंस्पायर्ड लुक, सो इंस्पिरेशन को हमें फॉलो करना था, बट जनरली यू कैन डू इट। ओके, उस्मा, मोनोक्रोमेटिक क्या होता है ये आपको कलर थ्योरी क्लास में चलेगा, क्योंकि इट्स अ वेरी बिग टॉपिक एंड वी कैन नॉट आंसर इट वन लाइन। बट यस, ओके, वी हैव अ क्वेश्चन, लिक्विड फाउंडेशन कब यूज करना है? लिक्विड फाउंडेशन आप यूज कर सकते हो ऑन समवन विद ऑयली स्किन, या तो ऑयली स्किन पर यूज कर सकते हो, और यू कैन ऑल्सो यूज ऑन कॉम्बिनेशन स्किन, ठीक है, क्योंकि लिक्विड फाउंडेशन का कंसिस्टेंसी थोड़ा पतला होता है, सो इट्स वेरी इजी टू वर्क ऑन ऑयली स्किन, तब आप यूज कर सकते हो। Okay, I think we have taken all the questions. या आई थिंक उज़मा का एक क्वेश्चन मैंने देखा था इन बिटवीन माय क्लास, कि क्या हम उन्होंने eyeliner पहले आईलाइनर लगा का कुछ सकते हैं? पूछा था। वो कहते हैं आई शेडो पहले कर सकते हैं क्या? या और उन्होंने फिर आईलाइनर का भी पूछा है कि उन्होंने सो सिर्फ आईलाइनर मैंने इसलिए नहीं लगाया है बेसिकली, क्योंकि जो हमारा इंस्पिरेशन है ना, विच इज कैटरीना कैफ का वेडिंग लुक, उसमें उन्होंने भी नहीं लगाया। शी हैज ओनली अप्लाइड अ बिट ऑफ काजल, सम शेडिंग अंडर आईज पे एंड मस्कारा, दैट्स इट। इस वजह से वी हैड टू फॉलो दैट थिंग, अदरवाइज हम इसमें लाइनर लगा सकते हैं इफ यू आर डूइंग सम अदर लुक। ओके, all right, I guess we are done. Yeah, we have taken all the questions from the chat box. Okay, Gurpreet was doing the changes जो आपने हमको बताया था. Gurpreet,
हो गए हो? Yes, ma'am. Okay, great. Just a moment. Yeah, now the blending is good. काफी अच्छी blending हो गई है अभी. हाँ, now it looks very much, perfect. Looks nice. Open करो. मैम नीचे भी हाँ. करें. Open करो. हाँ, शेडिंग भी अब देखिए इनके आईज और ब्यूटीफुल लग रही है. थोड़ा काजल बढ़ा के और शेडिंग करके और ज्यादा अच्छा लग रहा है. कंप्लीट लुक होता तो और ब्यूटीफुल लगता. सो नाइस, इट लुक्स गुड. मैम इनकी एज कम थी ना तो मैंने इसलिए नहीं कराई. अच्छा अच्छा, हाँ कोई नहीं, बट इट्स लुकिंग नाइस नाउ. आपको यही जो अभी करा है ना, हर मेकअप में यही स्टेप फॉलो करना है आपको. ठीक है, इसी तरीके की ब्लेंडिंग फॉलो करनी है अगर इस तरीके के आई शेप पे वर्क कर रहे हो. Perfect. I think now we are done with everything. We are done with the questions. We are done with the look reviews. So yes, thank you so much, Melissa, for this amazing Katrina Kaif inspired makeup look. Yes, Ankita, please, if you have any question, please may ask. Anji. हेलो मैम. हाय मैम मैं जब भी सीटाफिल मॉइस्चराइजर यूज करती हूँ ना, उसके बाद मैं बेस डालती हूँ ना तो वो रबड़ की तरह निकलता है. ओनली ये सीटाफिल के साथ ही होता है मेरा. जब आप सीरम लगाते हो फेस पर. सीटाफिल मॉइस्चराइजर. ओके, सो मे बी वो मॉइस्चराइजर जो होगा ना वो बिफोर मेकअप नहीं लगा सकते होंगे. आई मीन कुछ मॉइस्चराइजर होते हैं जो बिफोर मेकअप लगाओ फिर उसके ऊपर मेकअप लगाओ तो पील ऑफ होता है. सो यू शुड चेंज योर मॉइस्चराइजर अगर आपको मेकअप करना है तो. सीटाफिल के साथ ही होता है बट दूसरे मॉइस्चराइजर के साथ नहीं होता. नहीं होता तो मे बी वो आपको सूट ना कर रहा हो बिफोर मेकअप. किसी किसी का स्किन होता है जब हम प्रेप करते हैं तो मे बी इट इज नॉट सूटिंग विद योर फाउंडेशन. तो आपके फाउंडेशन के साथ जो फॉर्मूला सेटाफिल का है वो दोनों एक दूसरे के साथ वर्क नहीं कर पा रहे होंगे, इस वजह से ऐसा हो रहा होगा. तो आप उस केस में कोई और मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो फॉर द मेकअप पार्ट ओनली. ओके अंकिता, शी इज स्टिल देयर. Ankita? Yeah. थैंक यू. ओके. Okay, all right. All right. So thank you so much, Melissa. Thank you guys, and I'll see you in my next class. Bye bye. Bye-bye. Okay, guys. I hope this session आप सभी को अच्छा लगा हो. Any feedback, any suggestions, you guys are most welcome. Perfect. So thank you so much, guys, for joining us today. It was great having you here. I'm sure this session आप सभी को अच्छा लगा होगा. And thank you so much to everyone जिन्होंने भी लोग try किया. We would appreciate more people if more people do the like with us, and we want the numbers to be increasing. But okay, we are waiting for that moment as well. So please start practicing and. Because by the end of this month, January, we are going to have a test in which we will be asking you some theory questions and we will be giving you a look, and you will have to do the look. So it is very important for everyone to be a part of that test because it is a mandatory thing. And please आप लोग भी अभी से practice start करें. That's why I keep asking you to do the look with us, no matter what. आप जो टेस्ट होने वाला है उसमें आप अपने मॉडल के ऊपर भी मेकअप कर सकते हैं, अपने ऊपर भी मेकअप कर सकते हैं. So just keep practicing, guys, and thank you so much for joining us. We will see you in the next session. Till then, bye-bye and take care. Please don't forget to sign up on www.culture.com. Follow us on Instagram. Follow Melissa on Instagram. See you guys. Yeah. Have a nice day.